Speaker is from Navi Mumbai, and he himself is a very experienced, very successful entrepreneur, continuously opening branches all across India, and his mission and his goals are phenomenal. And he is one person who is like no, there ready and willing to contribute, willing to help. So, and he is none other than Biranchi Sarangi, a very active proponent of the volatility coach tribe also. Thank you. And we really look forward to learn and understand, because again, in 30 minutes, putting up the whole book and then also adding your own ideas and own experience is something very difficult. So we look forward. Without wasting much time, over to you, Biranchi. Thank you very much, Kanang bhai. And first of all, I love you too much, all of my friends. The country is needing you much. And today I'm going to share a little bit about. I'll try to summarize in my what I learned from that book, Never Eat Alone, because by only one mission and passion, just to make this country to be the one of the richest country of the planet, and making India rich, every entrepreneur to be a multi-millionaire and billionaire. And that is why this book is completely very much similarity along with my mission, my passion, and the whole dream of the nation also. So thank you very much, friends. It is all about a relationship. So, Kanak bhai, can I share? Just one sec. So before we start, at least we should start with a 1-minute video. You have to add sound also to that. You restart with the sound on. So I think sound was not there. No, you share, but just add sound to that. Just click the sound button. मुझसे पूछती है पैरों में फ्लैट्स पहनने हैं हील, ये मुझसे पूछती है। और इतनी बड़ी चीज हमारी रिलेशनशिप की ये बताएंगे है कौन ये? दोस्त है मेरे दोस्त, तमीज से बात कर ले इनसे तू। दोस्त है ना मेरे। तू ना वो दोस्तों के साथ ही रहे। तेरे मेरे बीच में जो भी था ना बहन, सब खत्म है। Friends, so try to understand how important is friendship and relationship. Always it is not important that you should always meaning for something like monetary, something financial gain. And you just imagine without paying a single penny how Mahatma Gandhi just accumulated a lot of people in the non-cooperation movement can happen in the entire country. And very interesting, when we are working with our own employee, own friends, own team members, a friend can leave, an employee can leave, but student never leave mentors. So try to understand how many mentors we are keeping in our life and what exactly we are expecting from mentors. Financial gain? Never ever. And try to understand how Kate Faraji just explained the book, and that book is Never Eat Alone. Just a sec. So I have summarized in this book like relationship compounding. As we all are the financial professionals, we know the kind of index like Sensex, Nifty, and
so many indexes we know, and I believe that one index that is called the relationship index, which is relevant, the way it is power of compounding, that is the way that this book is summarizing how relationship compounding can help you. Can't even imagine what can the kind of wonders can happen for you, for your generation and generation going forward. So actually what happened, अगर हम दोस्त हम कभी भी एक कहावत है, अगर हम अफ्रीकन जंगल में हम है और यहाँ पे जाते हैं कि अगर आपको बहुत स्पीड भागना है अपने को अकेले जा सकते हैं, लेकिन अगर अपने को बहुत लंबा जाना है तो साथ में लेके जाना बहुत जरूरी है। बिकॉज हम कोई जंगल में जाते हैं, ऐसे ऐसे कौन से सिचुएशन है जो कि हमारे स्कूल्स में, हमारे बचपन में, हमारे एवरी मोमेंट जो कि जिसने हमको एक बार हेल्प किया है, एंड ड्यू टू देयर हेल्प, ड्यू टू देयर पॉजिटिव रिलेशनशिप, हमने एक एक कदम आगे बढ़ पाए। आज हम जहाँ पे भी है, कितने लोगों का हमारे लिए वो कंट्रीब्यूशन एंड वो प्योर रिलेशनशिप है, क्योंकि एंड वी शुड थैंक देम, ईच एवरी वन ऑफ अस, कि ड्यू टू देम वी आर हियर टुडे। So go together, friends, go together, then your journey becomes amazing, it will become inspiring, and it will become completely enlightened. You must keep discipline by maintaining, you should be careful, you should be careful about your relationship. That is what Keith Peraji, he is a very poor person, मतलब वो अमेरिका में वो जाके पढ़ाई करते हैं एंड हार्वर्ड को बिजनेस स्कूल में देखते हैं, वो देखते हैं कि हाउ रिच पीपल आर जस्ट डूइंग देयर लाइफ। एंड आप क्या चाहते हैं, आप अकेले रहना चाहते हैं या आप दूसरों के साथ रहना चाहते हैं? यू वांट टू ईट अलोन, सारे के सारे खाना हम अकेले खाएंगे, या हम सारे दोस्तों के साथ, सारे रिलेटिव के साथ, फैमिली के साथ जब डिनर टेबल पे बैठते हैं, क्या हम अकेले बैठते हैं या पूरा फैमिली के साथ जब बैठ के खाना खाते हैं? मजा किसमें आता है? सबसे ज्यादा जो अकम्प्लिशमेंट, जो फुलफिलमेंट किसमें सबसे ज्यादा आता है? एक बार क्या हुआ था उसमें, जब केथ वाज स्टडिंग देयर एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, उस टाइम पे ही वाज वेरी पुअर एंड ही हैज बीन डिस्कार्डेड बाय सो मेनी कम्युनिटीज, सो मेनी सोसाइटी। उनको बहुत सारे मतलब लांछन के, मतलब पीपल आर क्रिटिसाइज्ड एंड ही वाज रिपेंटिंग फॉर दैट कि क्या करे, बट वो ऑलवेज कीप कंटिन्यूइंग। उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया कि मेरे पास कुछ नहीं है, फाइनेंस नहीं है, लेकिन मेरे पास, मेरे गले में लक्ष्मी सरस्वती है, जो जिनके कारण मैं बहुत सारे मेरे मीठी आवाज से, मीठी बातों से, अच्छे रिलेशनशिप में, अनकंडीशनल रिलेशनशिप में मैं सारे दुनिया को अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, टीचर्स आर द लीडर्स, दैट इज व्हाई दिस बुक ऑलवेज सजेस्ट, हमने बहुत सारे लाइफ देखे, बट दिस बुक कंप्लीटली शोज कि आप हाउ यू आर केयरफुल फॉर योर क्लाइंट, how you are the kind of beautiful relationship within your clients and you. It is continuously helping you, inspiring you, motivating you to be one step better than yesterday. Plant the seed of relationship. Second, he is saying don't keep score. कुछ मत देखिए, कुछ मत सोचिए, आप रिलेशनशिप का प्लांट बोते जाइए। बिकॉज जब आप बोते जाएंगे ना, try to become udarta, the kind of generosity. So the moment you believe that कि आप completely you are completely ऐसे कि आप उदार मनोभाव है, you are really caring for your relationship and you are planting the relationship. Every point of time आप कोशिश करते हैं नया नया रिलेशनशिप बनाने के लिए, एंड उसके लिए उन्होंने क्या किए थे, मैं आऊँगा नेक्स्ट ये में कैसे हाउ टू इम्प्लीमेंट द रिलेशनशिप, मैं नेक्स्ट सेशंस में बताने वाला हूँ बाय नेक्स्ट 5 to 10 minutes। बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप, जितना ज्यादा हम बनाते हैं, हम अगर 2 रिलेशनशिप बनाते हैं हमारे लिए 4 फायदा होते हैं, 4 रिलेशनशिप बनाते हैं हमारे लिए 16 फायदा होते हैं। इट हैपेंस इन अ मल्टीप्लाई, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जैसे काम करते हैं। आपको अगर 3 साल रिलेशनशिप के ऊपर आप काम करते हैं, आपको 9 साल की बेनिफिट मिलता है। अगर आप 4 साल रिलेशनशिप आप बनाते जाते हैं, यू आर मेंटेनिंग ब्यूटीफुल रिलेशन, मोर एंड मोर कनेक्शंस, देन your next 16 years becoming more powerful and very much आप समझ भी नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे how this has happened. One thing Keith Peraji understood कि
जो बड़े लोग होते हैं, जो रईस लोग होते हैं, वो कभी भी हेजिटेट नहीं करते. दे नेवर वो कभी भी हेजिटेशन नहीं करते हैं कि मांगने का. कभी भी हमने कभी कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दोस्त को हमने सपोर्ट मांगे हैं, ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प, ऑलवेज आस्क फॉर डायरेक्शन, always ask for support, always ask for your financial growth, asking and never shy to ask, don't be shy at all. किथ जी जो कि दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में वो बोलते हैं कि नेवर एवर हेजिटेट योरसेल्फ, कभी भी अपने को आस्किंग के लिए आपकी जो ड्रीम आस्क है मांगना बंद मत करिए. आप रिलेशनशिप बनाते जाइए एंड मांगते जाइए. You don't know, some point, somewhat, someone, someone will be there for you, and rest assured, you have to that kind of belief on yourself. Ask for lot of connection, ask for job, ask for business. It always ask for connection which helps your relationship strong with pure, nice, humble relationship, irrespective of financial gains. Understand the rich becomes more rich because they don't hesitate to asking for any kind of connection. They are always believing into, उनका एक सेम काइंड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अलाइनमेंट कैसे होते हैं, उन लोग को वो साथ में लेके चलते हैं. आप देखिए कि आपके कौन से लोग हैं जो कि आपके इंटरेस्टिंग आपके साथ यू आर पैशनेट अबाउट, आप जिनके साथ आपका जो पैशन है आप उनको शेयर कर सकते हैं एंड उनके लिए आप क्या बेनिफिट करके दे सकते हैं, हाउ दे कुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, एंड दैट वे ट्राई टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप. देन as I mention, उन्होंने और एक पॉइंट बताया था कि पावर ऑफ स्क्वायर ऑफ द रिलेशनशिप. हमने पढ़े हैं कि जैसे कि कोई मैथमेटिक्स में कोई इन्वेस्टमेंट्स का हम कितना कंपाउंडिंग होता है, रिलेशनशिप भी वैसे ही अपने के पास बहुत बड़े कंपाउंडिंग होते हैं. तो नेवर इट एलोन में उन्होंने कंप्लीटली बोले हैं कि रिलेशनशिप कितने पावरफुली काम करते हैं. अगर आपने 20 मेंबर के साथ रिलेशनशिप बनाए, 20 न्यू कनेक्शन के साथ आपने रिलेशनशिप बनाए, सो इट बिकम्स 400 टाइम्स आपको बेनिफिट्स मिल सकता है. अगर आपने 100 रिलेशनशिप बनाए तो इट विल नॉट बिकम 100, इट विल बिकम 10,000 टाइम्स आपको बेनिफिट्स मिल सकता है. एंड अगर आपने अगले 3 से 4 साल आपने रिलेशनशिप के ऊपर इन्वेस्टमेंट किए तो अगला 9 से 16 साल आपका पैसिव इनकम क्रिएट कर सकता है. हमको लगता है कि नहीं, हमको ऑटोमेटिकली वी आर रनिंग बिहाइंड बिजनेस, नॉट रिक्वायर्ड. जस्ट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, विद ए प्योर माइंडसेट आप रिलेशनशिप की तरफ जाइए एंड यू क्रिएट मोर एंड मोर रिलेशनशिप एंड दैट टू इन ए प्योर माइंडसेट. हम सही में कैसे बन सकते हैं, वो परिवार के साथ कैसे हम जोड़ सकते हैं, एंड बोर ऐसे नई रिलेशनशिप नहीं बनाना है फॉर द सेक ऑफ मेकिंग, इसीलिए बनाना है कि आप सच में चाहते हैं अगले 100 साल का रिलेशनशिप, वो परिवार के साथ आप पूरा विलीन होना चाहते हैं. आप मुझे बताइए कि कितने फैमिली चाहते हैं कि मेरा जो मैं आज जो भी हूँ, मेरा लीगासी बहुत बड़ा अच्छा होना चाहिए, मैं क्या लीगासी छोड़ के जाऊँ. तो वैसे ही कुछ लोग हैं ना, तो वो चाहते हैं मैं मेरा रिलेशनशिप का आज लीगासी छोड़ के जाऊँ. इतना बड़ा वो रिलेशनशिप आपके लिए बात करते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है. एंड गिव टू गेट, द पावर ऑफ रिलेशनशिप व्हेन यू गिव, बिकॉज आप जब भी देते हैं ना तभी आपका रिलेशनशिप बिकम्स एक्टिवेट. अगर कोई एक मान लीजिए कोई छोटा बच्चा, उसके अंदर जो जान आता है तो दैट बिकम्स, फिर वो एक्टिवेट होते हैं. तो दैट वे द मोमेंट यू आर गिविंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, मनी, पावर, कोई भी फॉर्म पे, केयर, लव, any form, assurance, and you are standing, you are in any kind of situations, you are supporting with that family. In those situations जब आप देते हैं, that moment time आपका रिलेशनशिप उस परिवार के साथ एक्टिवेट होता है इमीडिएटली. एंड एक बार वो एक्टिवेट होता है, क्या हमको वहीं पे छोड़ना चाहिए? नो, नॉट एट ऑल. कीप कंटिन्यूइंग फॉर नेक्स्ट 3 years. कीप, इरेस्पेक्टिव आपको नहीं मिले कुछ भी प्रॉब्लम नहीं. देन यू विल गेट व्हेन यू टू मच ऑफ क्रेडिट बैलेंस. ध्यान रखिए, जब आप देते हैं ना, लाइक कार्मिक अकाउंट, आपका क्रेडिट बैलेंस जब बढ़ता है, गिव अकाउंट, एंड वो बहुत हाईली एक्टिवेट होता है.
और आपको मालूम नहीं पड़ता है किस लेवल पे वो आता है। वो दैट इज द थिंग, गिव टू गेट, जो कि माइंडसेट आपका कैसा होना चाहिए, तो कीथ फेराजी ने बोले हुए। देन उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी शेयर किए कि आपको रिलेशनशिप बनाना कैसा है। फर्स्ट, as I mentioned in some time, from point of time, कि you have mentors in life. ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हमारे हर एक के लाइफ में अपने माता पिता हैं, हमारे लाइफ में हमारे गुरु हैं, हमारे फाइनेंशियल गुरु हैं, हम जो पैशन रखते हैं उसकी गुरु हमको सिखाते हैं, जानते हैं, क्योंकि आपके गुरु आपके फीस से ज्यादा आपकी सक्सेस उनको ज्यादा प्यारे। हु हेल्प यू, उनके एक ही मकसद होता है कि आपकी लाइफ को स्मूथ करवाना, कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल पाए। क्यों जानते हैं? बिकॉज जैसे उनकी जो गुरु का जो गरिमा होता है ना, वो भी अपना लेगासी छोड़ना, बिफोर दे लीव द प्लैनेट दे आल्सो वांटेड टू लिव विद द काइंड ऑफ लेगासी, एंड वो लेगासी जानते हैं कौन है? वो आप है। तो जब ये रिलेशनशिप का आप लेगासी कभी कोई छोड़ना चाहते हैं ना, अगर हम वो इंटेंशन से रखते हुए अगर हम मेंटर्स बनाते हैं, key to get mentors, that how you can service to them, just give। अब जब ये देते हैं ना, आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपकी जो इमोशनल कनेक्शन से आपको जो चाहिए, आपकी जो इमोशनल ड्रीम्स है ना, that relationship becomes emotional and inspirational, and that when logic ends, वहां पे मैजिक स्टार्ट होता है। he who wants to see you become like him or her, like as his legacy, mentor's legacy, he wants to see you most powerful than him also, and most powerful than money and his peace, in terms of financially gain भी उनको पसंद भी नहीं है। they really interesting about your success, because उनको लगता है कि आज तक मैंने मेरे जिंदगी में जो जो करके रखा हुआ है, हो सकता है रमाकांत आचरेकर उन्होंने अपने लाइफ में कितना सेंचुरी मारे नहीं मारे, लेकिन उनकी जो मेहनत बनाए ना, वो सचिन तेंदुलकर को खड़ा की। That is so, Sachin Tendulkar is the legacy of the Ramakant Achrekar. That is why friends, हम जब भी कोई रिलेशनशिप बनाते हैं, भले ही वो हमारे नए क्लाइंट्स हो, लेकिन अगर एज ए मेंटर की तरह अगर हम देखते हुए उनसे प्योर रिलेशनशिप बनाते हैं, दैट बिकम्स सुपर मैजिक पावरफुल। एंड वो जो है, जैसे कि कृष्ण और सुदामा का साथ जैसे रिलेशनशिप बनता है ना, वैसे ही रिलेशनशिप हमारा बन जाता है वहां पे। दैट इज व्हाट ही वांटेड टू शेयर, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने, उनके पास बहुत पैसा नहीं था। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जब भी वाशिंगटन एंड न्यूयॉर्क में किसी को उनको न्यूयॉर्क में अलग अलग लोकेशन पे उनको मिलना था, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट वो क्या बोलते हैं, दैट अरेंजिंग ए डिनर पार्टी। कीथ क्या कर रहे थे ना, एक बार उनकी 4-5 बड़े बड़े क्लाइंट को, वो अलग अलग लोकेशन है, मुझे 4 लोगों से मिलना है, बट वो 4 लोगों से मैं एट ए टाइम नहीं मिल पाऊंगा। तो क्या करें, उन्होंने एक चारों को बुलाया, एक ही जगह पे बुलाया, एक ही जगह पे डिनर पार्टी करवाया। नेवर ईट अलोन, ईट टुगेदर। वेरी इंटरेस्टिंग। सो जब ये पांचों के पांचों अलग अलग फील्ड के लोगों को बुलाया, उनका पर्पस सॉल्व हो गया। वो एक ही जगह पे उन्होंने डिनर पार्टी अरेंज करवाया, एंड सारे जो उनकी जो अमेजिंग कस्टमर थे या अमेजिंग क्लाइंट थे या फिर अमेजिंग जो भी उनके फ्रेंड हो सकते हैं, उन सारों को बुला के एक ही जगह पे उन्होंने वो डिनर पार्टी करवाया, एंड इंट्रोड्यूस ईच अदर फॉर मोर कनेक्शन। एंड क्योंकि कीथ के कारण ये चारों जो अनजान लोग थे, वो बहुत ज्यादा मतलब जैसे कि जाना पहचाना वो लोग हो गए, उनका रिलेशनशिप बॉन्डिंग बहुत बढ़ गया। इट इज ड्यू टू कीथ। ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, कीथ ऑलवेज, एवरी वीक, every day he was arranging dinner party. It is very interesting book, seriously very interesting book. How many of you find that it is really interesting? Friends, are you finding really interesting? It is working like magic, compounded magic. Thank you. So 52 वीक्स में 52 डिनर पार्टी, एंड वो भी ये भी बोले कि मुझे ज्यादा बजट भी नहीं चाहिए, हमको जरूरी नहीं है कि मुझे कि बहुत महंगा मतलब बड़ा खाना वाना खिलाना है, नहीं, आप अगर सलाद भी खिलाते हैं चलेगा। अगर किसी का 5-6 अच्छे लोग हैं, उनको बोला कि एक वाइन पार्टी करवा दिया, या फिर कुछ मतलब शरबत भी बना के दे दिया। द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू व्हाई ही, बिकॉज उनके पास बहुत पैसा नहीं था,
तो उन्होंने ये जो प्रोसेस को अडॉप्ट किया कि अरेंजिंग डिनर पार्टी, नेवर ईट अलोन। सो वो जो खुद की लाइफ में वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना, उनको वो बुक में उन्होंने डिकोड करके रखे हैं। तो क्रिएट ए स्मॉल स्मॉल टीनी ग्रुप्स एंड मेक ए क्लब एंड पार्टी टुगेदर। तो आप सोचिए फ्रेंड्स, आज के बाद आप कितना पार्टी करने वाले। मैं लास्ट में उनका एक पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, जो कि अप टू ये दिस इज समथिंग implementation strategy of building a very strong relationship. Do you found that by creating more and more mentors, इसे दिखाने के लिए नहीं, सच में दिल से आना चाहिए, क्या सच में हमारा लाइफ मीनिंगफुल हो जाएगा? दैट रिलेशनशिप हमारा लाइफ को बहुत इमोशनल रिलेशनशिप बना सकता है। एक दूसरे के लिए जैसे मर मिटते हैं, जो बोलते हैं 5 डिफरेंट पीपल, एंड आप उनको, वो अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग लोकेशन से, कोई न्यू जर्सी से था, कोई न्यूयॉर्क से था, कोई वाशिंगटन से, उन सारों को बुला के एक जगह पे बुला के बोले हम मैं इनवाइटिंग टुगेदर एंड वी विल हैव ए पार्टी टुनाइट। क्रिएट ए स्मॉल टीनी ग्रुप एंड मेक ए क्लब एंड ए पार्टी टुगेदर। Keith Ferraggi invites new people every week for new dinner part. It's not about how big and small of the menu card. बजट आपका महंगा पार्टी है या छोटा पार्टी है, डज नॉट मैटर, इट मैटर्स। आप एक छोटा सा 5-10 ग्लास शरबत दे के भी कर सकते हैं, छोटा सा कुछ भी छोटा मोटा, मतलब नाइस घर में किटी पार्टी टाइप का कर भी कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे वीसीज हैं, आई रिकमेंड, आप अगर घर पे भी किटी पार्टी ऐसे ही, ठीक है, इरेस्पेक्टिव आपको 4 साल रिलेशनशिप बनाना है, घर पे आपके आजू बाजू वाले उनको खाली बस हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार आप डिसाइड करिए क्या करना है, किटी पार्टी करवाइए एंड जस्ट एक प्योर रिलेशनशिप बनाते जाइए एंड आप देखिए एंड एक दूसरे से आप मिलाते जाइए एंड ट्राई टू एंश्योर कि एवरी टाइम यू आर ब्रिंगिंग न्यू पीपल, बिकॉज आप होस्टिंग कर रहे हैं, आप फैसिलिटेटर बन रहे हैं। ध्यान रखिए, जो फैसिलिटेटर बनते हैं ना, उनका ब्रांडिंग बहुत भयंकर होता है, पैसे की जरूरत नहीं होता है। दैट इज व्हाट दिस बुक इज कंप्लीटली एजुकेटिंग। Not required high budget and small budget as per your comfort. You can do low budget to high budget as per your choice. It is very much possible. Then third thing, आप जिनको बुलाते हैं वो भी important है। मान लीजिए मेरा कुछ इंटरेस्ट, मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है, बाकी दूसरे में जिनको बुलाता हूँ उनको बुक पढ़ने से नफरत है, देन आप उनको बुलाइए डूइंग व्हाट यू पैशनेट अबाउट। थर्ड थिंग इज जस्ट एक्सप्लेन इन द बुक कि अंडरस्टैंड पीपल में कनेक्ट यू इफ यू शो मोर पैशनेट टू शो देम। डोंट ब्रिंग पीपल इन मिथ दैट दे विल जॉइन, जिसमें आपका पैशन नहीं है, उनकी आपका दोनों का कॉमन इंटरेस्ट। मान लीजिए मैं योगा करता हूँ एंड कनक भाई योगा करते हैं, मैं कनक भाई को बुलाता हूँ, चलो ठीक है आके हम योगा करते हैं, तो इन दैट वे तो मतलब कॉमन इंटरेस्ट हो जाता है। एंड मैं कनक भाई को जानता नहीं है, कनक भाई मुझे नहीं जानते हैं, तो इन दैट कंडीशन क्या होता है ना, हम आते हैं एंड एक जगह पे फोरम में हम पार्टी करते हैं। अच्छा आप भी योगा करते हैं एंड यू ब्रिंग न्यू इंटरेस्ट पीपल। फ्रेंड्स, आर यू फाइंडिंग समथिंग इंटरेस्टिंग कि कोई ट्रैकिंग का है, कोई प्लेइंग बैडमिंटन। सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग अबाउट कि आप वही काम करिए जिसमें आपका कमांड है एंड डोंट ब्रिंग पीपल फॉर द नंबर ऑफ क्वांटिटी। ट्राई टू एंश्योर यू आर द मोमेंट यू आर ब्रिंगिंग दैट डाइनिंग टेबल मीटिंग कर रहे, डाइन मीट कर रहे हैं ना, दैट रिलेशनशिप सपोज टू बी लाइक ए मीनिंगफुल रिलेशनशिप, इट सपोज टू बी ए क्वालिटेटिव रिलेशनशिप। एंड वो एक बार वो डाइनिंग टेबल से जाने के बाद वो आपको इमोशनली याद करना चाहिए फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। दैट इज द इंटेंशन ऑफ दैट मीटिंग एंड डाइनिंग मीटिंग। बिल्डिंग उसमें जब आप वो करते हैं ना, आपकी तरफ वो ट्रस्ट बढ़ता है, 1 बार 2 बार 3 बार। एंड कोई चीज अगर आप 6 से 7 बार करते हैं, जो कि आई लर्न समथिंग दैट अमेरिकन सेल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक रिपोर्ट है, आज तक जो पहला 90% सेल ड्रॉप बिकॉज सेकंड मीटिंग हो नहीं पाता है, नॉट हैविंग द राइट फॉलोअप सिस्टम। फॉलोअप सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप वो जो डाइन कर रहे हैं उसका आप इन ए कॉन्शियस मैनर आपको करना है कि मुझे आई एम नॉट डूइंग फर्दर, मुझे खाली बहुत सारे रिलेशनशिप बनाना है, आई एम मेंटेनिंग द रिलेशनशिप फॉर नेक्स्ट 3 to 4 to 5 years, तो मेरा अगला 25 साल विल बी टेकन केयर। मुझे 100 साल चाहिए, देन आई हैव टू वर्क फॉर 10 years रिलेशनशिप। एंड जस्ट आप याद करिए, जो लोग हिंदुस्तान में हैं या ग्लोबली है,
उन्होंने अपने रिलेशनशिप के ऊपर क्या काम किया है, उनको क्या मिला है। आई थिंक हमारे सबके सामने उसका एविडेंस है हमारे पास। सो बिल्डिंग ट्रस्ट इन रिलेशनशिप, इट बिल्ड्स व्हेन यू डू मोर एंड मोर क्वालिटेटिव रिलेशनशिप, नॉट इन क्वांटिटी। देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फाइनल, वो बोलते हैं रिलेशनशिप का एक्शन प्लान। आप अगर चाहिए किड्स फेराइजी का उनका वेबसाइट में आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी क्या क्या गोल्स है उसको आप राइट डाउन करिए, एंड वो गोल को आपकी कौन से व्यक्ति है जो कि आपके अमेजिंग कस्टमर हो सकते हैं या फिर आपके चैनल पार्टनर हो सकते हैं, आप उनका नाम लिखिए। एंड उनको आप कैसे बुलाएंगे, उनको आप डेली या वीकली या एनुअली और क्वार्टरली आप कैसे मिलने वाले हैं वो आप बताएंगे, वो प्लान करके एंड उसके एक्शन प्लान आप बनाएंगे। एंड देन पुट टुगेदर, आप साथ में सबको बुला के मिला के बैठिए कि कैसे आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। एंड बाय हेल्पिंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, बाय डूइंग द इंटेंशनली, आप हेल्पिंग माइंडसेट से जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं तो स्ट्रेट अवे दैट रिलेशनशिप बिकम्स कंपाउंडिंग एंड दैट रिलेशनशिप moves forward seamless, unbelievably वो होता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू समराइज। जैसे कि मैंने बताया कि यू मस्ट हैव मेंटर्स इन लाइफ, देन अरेंज ए डिनर पार्टी, जो कि किड्स फेराइजी कंटिन्यूस बेसिस पे उन्होंने करके उन्होंने अपने लाइफ में मैक्सिमम कनेक्शंस, नेटवर्किंग, द पावर ऑफ नेटवर्किंग का क्या होता है वो उन्होंने, उनका और एक भी बुक है द पावर ऑफ नेटवर्किंग, वो नेटवर्किंग के ऊपर बहुत ज्यादा बोलते हैं। एंड नेटवर्किंग वो बाद में आता है, उससे पहले रिलेशनशिप, एंड रिलेशनशिप से पहले प्योर रिलेशनशिप। आप जब भी किसी को एंड आप देखेंगे बहुत सारे मार्केटिंग प्रोफेशनल वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, इन्फ्लुएंसर पर्सन को लेके आते हैं। क्यों? जब आज मेंटर को आप लेके आते हैं तो डेफिनेटली वो मेंटर भी चाहते हैं कि इनका भी अच्छा हो। आप देखेंगे हम हमारे मैं बहुत बार मैं मेरे पर्सनल लाइफ में भी यूज किया हूँ, आई हैव इम्प्लीमेंटेड इन माई ओन लाइफ। सो इट रियली इट एक्ट्स लाइक मैजिक, बहुत पावरफुली मैजिक करते हैं ये। सो समराइज, ह्यूमन बीइंग आर सोशल एनिमल, लिविंग ए कनेक्टेड लाइफ लीड्स टू वांट टू टेक ए डिफरेंट व्यू। लाइफ अलोन इज लेस quest than a quilt. We find meaning, love and prosperity through the process of stitching together. Yes or no? Our bold attempt is to help others find their own way in their life, their relationship we have. So that is why the relationship index starts from today now. We have to inject ourselves, we have to design train our brain in a such a manner, henceforth बिजनेस इज ए बाय प्रोडक्ट, वो हमारा होके ही रहेगा, बट हम अगले 5000 साल तक हम लोग हमको याद करेंगे। एंड फर्स्ट आपको तो हर एक को थैंक यू बोलना है जिन्होंने आपको आज तक आपको हेल्प किए। दे मे बी योर फादर, दे मे बी योर मदर, दे मे बी योर टीचर, दे मे बी योर फ्रेंड, दे मे बी योर एम्प्लॉय, दे मे बी योर कलीग्स, दे मे बी योर बॉसेस, हुएवर, दे मे बी योर क्लाइंट्स। उनका एक हेल्प, बिकॉज उन्होंने आपके सिचुएशन को समझ पाया एंड आपको हेल्प किया है। एंड हेल्पिंग टुगेदर, वहां पे एक ट्रस्टेड रिलेशनशिप बनता है। सो नेवर ईट अलोन, ईट टुगेदर। किसमें मजा ज्यादा है? अकेले खाने में मजा है ना साथ में मिलके खाने में मजा है? अकेले एंजॉय करने में मजा है ना साथ में? आई थिंक हमने गोवा गए थे, बहुत अच्छे से एंजॉय किए थे। दैट इज हाउ, दैट इज व्हाट। सो ये दिल से, जब दिल से आप कनेक्शन करते हैं ना, जब मैं भी बात करता हूँ कि यहाँ पे एफएफ में बात करते हुए कनक भाई बोलते मैं दिल से आता हूँ, मुझे कुछ नो सेकंड ट्रेन। एंड फ्रेंड्स, हिंदुस्तान को बहुत रईस बनाना है एंड उसके लिए आपका रिलेशनशिप इंडेक्स को सपोज टू बी पूरा टॉप करना, बहुत कंटिन्यूसली हायर हाई वो आपको टच करना चाहिए, बहुत जरूरी है। एंड यू मस्ट फोकस ऑन योर रिलेशनशिप BMI, देन ओनली दिस relationship compounding can be happen in a bigger manner and it always compounded you and that will be आप भी समझ नहीं मिलेगा, वो decade after decade it will give you the compounding result. Thank you very much Kanak bhai and thank you all my loving friends. Thank you so much Virenji bhai for doing this in such a half an hour time. So as a contribution for the wisdom from best-selling books, thank you so much for contribution to the season 9 session. So that was friends Virenji Sarangi, who is a strong proponent of relationship and he has been practicing this
And I'm sure that so many friends who are very close to him, they know about this. It was a very, very worthwhile session from all three speakers today. And we really look forward to learn more and more within this month of July from all the other speakers who are planning to come and share their book studies. I'm sure you all have liked. Maybe you all can write something, what you learned from this book, Never Eat Alone. What was your best takeaway?